Hello student, a very good afternoon to one and all. Myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi, teaching the subject Principle of Management, moving towards the another concept in unit number 3rd. In unit number 3rd, in the previous video, we have learned about the staffing concept. What is meant by staffing? Staffing is nothing but a right person should be hired at the right place and at the right time. सही बंदे को हमें सिलेक्ट करना है का तो हायर करना है सही टाइम में और सही प्लेस में, उसका मतलब होता है स्टाफिंग. सो right person should be selected at the right place for the right time. Then we have learned its feature. We have learned the recruitment concept. Now you know very well what is mean by recruitment. Recruitment is nothing but a link in between a job seeker और जो जॉब ढूंढ रहे और जिसको जॉब की ज़रूरत है और जो कंपनी वैकेंसी फिलअप करना चाहती है, वो दोनों को हम मैच कर रहे हैं. दैट इज योर रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज अ लिंक इन बिटवीन द जॉब वैकेंसी एंड जॉब सीकर. दैट इज अ रिक्रूटमेंट. नाउ टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स द सिलेक्शन. नाउ यू नो very well what is mean by selection. As in the previous video we have just go through the basic idea of the selection. Now selection is nothing but a device which is used by an organization to select a suitable person who has required education, skill, ability, personality and the thing which is required for the job. सिलेक्शन ये एक डिवाइस है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जहाँ पे हम सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करते हैं उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड पर्सनैलिटीज. सो इन सिंपल वर्ड सिलेक्शन क्या होता है? इज अ प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को एडिक्वेट नंबर ऑफ द पर्सन which fit for the job are being adopted in the selection procedure. So in simple words, selection is a process being adopted by an organization to select adequate number of the person who has fit or which fit for the job. जो job की requirement के हिसाब से बंदे को हम select कर रहे हैं, that is my selection device or a selection procedure. So according to the author's tone, selection is a process which differentiate between an application. Selection आपका ये process है जहाँ पे आपकी जो जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी फॉर द फिलिंग द जॉब वैकेंसी, वो सब में वो डिफरेंशिएट कर रहा है. सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एप्लीकेशन in order to identify or in order to hire those which have a greater likelihood of the success in the job. मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ जहाँ पे सारी एप्लीकेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसी के बेस में इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और हायर द बेस्ट employee in the organization which can increase your organization growth. तो selection tends to be a negative because यहाँ पे बहुत सारी number of person को हम reject करते हैं, number of application को reject करते हैं. तो यहाँ पे क्यों हम reject करते हैं? Because we want to hire the best one. That is your selection. Now, in today's video section, we are moving to the concept that is selection procedure. We have learned the basic concept of selection. Now, what is a process of the selection procedure? That will be learned by step. The selection process involve a number of steps. Various steps of selection process may be differ as per the organization. ठीक है, आपके selection process which involve number of steps. हर एक स्टेप जो है सिलेक्शन प्रोसेस में वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर हो सकता है, बिकॉज हर एक में सिलेक्शन प्रैक्टिस जो होती है वो डिफर हो सकती है as per the nature of organization or large or as per the size of organization. So standard selection procedure which need to have the following step need to be considered are been to be understand in this section. So this is the standard procedure or the step through which we can select the suitable person. First one is screening of application. Now the first step in the selection procedure is that screening of application.
द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन अपने रिसेप्शन में रिसीव किया होगा वहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने रिसीव्ड की है आपके रिसेप्शन डिपार्टमेंट में, वो सारी एप्लीकेशन को आप स्क्रीन आउट करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में स्क्रीन आउट करना है, जो क्वालिफाइड है वही बंदे की एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करोगे। मेरे पास मुझे अभी फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन का बंदे की रिक्वायरमेंट है, उसमें एचआर और मार्केटिंग वाले बंदे ने भी एप्लीकेशन डाली है, तो इट डज नॉट फिट हैज पर द जॉब वैकेंसी, तो उस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करेंगे। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बच्चों मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्क्रीन आउट करेंगे जो जॉब वैकेंसी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, जो जॉब वैकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब वैकेंसी की जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। और बाकी जो रिजेक्ट किसको करेंगे, जो एप्लीकेशन आपकी जॉब वैकेंसी के हिसाब से नहीं होगा। तो यो बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ओनली दोज कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हु आर फाउंड टू बी मीटिंग द जॉब स्टैंडर्ड, जो हमारे जॉब के स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं वही बंदे को हम आगे बुलाएंगे फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन में सारी एप्लीकेशन का स्क्रीन आउट होगा और जो जॉब वैकेंसी में स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया होगा, कब तो जो आपकी एप्लीकेशन आपकी जॉब वैकेंसी के साथ मैच हो रही वो बंदे को आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रीन आउट करोगे और वो बंदे की एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज योर सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट करते हैं टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कैंडिडेट बेटर है कि नहीं, का तो कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी लेते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एटीट्यूड, अबाउट देयर इंटरेस्ट, अबाउट देयर पर्सनैलिटी। तो सिलेक्शन टेस्ट मतलब क्या हुआ कि सर्टेन टेस्ट अबाउट योर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी विच cannot be known by the application। एप्लीकेशन से हमें पता नहीं चल सकता है कि उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसका एप्टीट्यूड क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो हम ये सिलेक्शन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टेस्ट यू कैन जज द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। सो वेरियस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जैसे कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट हुआ, ठीक है, इट कैन बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट, इट कैन बी योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इट कैन बी अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते हैं, डिफर टू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इट कैन बी एप्टीट्यूड टेस्ट, इट कैन बी योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इट कैन बी एन अचीवमेंट टेस्ट। द थर्ड पॉइंट इज इंटरव्यू। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। याद रखना, ये जो आप थर्ड स्टेप में जो इंटरव्यू लेने वाले, इट इज ए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जहाँ पे आप बेसिक आइडिया, योर आपका मेन इंटेंशन क्या है, टू फाइंड आउट ओवरऑल सुटेबिलिटी ऑफ योर कैंडिडेट, कि कैंडिडेट सुटेबल है जॉब के लिए, उसका बेसिक आइडिया जानने के लिए आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। दैट इज योर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का तो फर्स्ट स्टेज इंटरव्यू। द क्वेश्चन आर पुट टू द कैंडिडेट फॉर द इवैल्यूएशन, और जो क्वेश्चन आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, एक्सपीरियंस के रिलेटेड, इंटरेस्ट के हिसाब से, जो फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैंडिडेट नीड टू आंसर इट। क्वेश्चन सपोज वो इंटरव्यू इनिशियल स्टेज इंटरव्यू जो है उसमें वो पास हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर में वो मूव ऑन करेगा। उसके बाद है चेक इन ऑफ रेफरेंस। सपोज आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और आई कैन कंसीडर द इनिशियल इंटरव्यू, उसमें आप पास आउट हो गए तो आपका रेफरेंसेस को चेक किया जाएगा, because many organizations ask the candidate to provide the names of references from whom more information about the candidate can be आप ले सकते हो। तो यहाँ पे चेक इन ऑफ रेफरेंस, सपोज आई हैव गिवन द मैंने रेफरेंस में कोई दो बंदे का तो दो पर्सन का जो हायर ऑथोरिटी में है, उसका मैंने हाई ऑथोरिटी का तो जो मुझे पहचानते हैं उसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसके नाम और उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो मैंने हर एक चीज मेंशन की है। तो अभी ये चेक इन ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट करवा रहा होगा वो बंदा क्या करेंगे, जो रेफरेंसेस आपने दिया है उससे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है।
तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इंफॉर्मेशन की आपके कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी तब वो रेफरेंस भी चेक करेंगे। तो आपका यूजर रेफरेंस में भी क्या हो सकते हैं, आपके प्रीवियस एम्प्लॉय हो सकते हैं, पर्सन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप रेफरेंस देना चाहते हो तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का रेफरेंस दे सकते हो, स्कूल के टीचर का रेफरेंस दे सकते हो इफ दे नीड टू सिलेक्ट यू फॉर द बैचलर डिग्री। तो यहाँ पे रेफरेंसेस कैन बी योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, का तो जो आपको पहचानते हैं उसकी रेफरेंसेस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे चेक इन ऑफ रेफरेंसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपके रेफरेंस जो आपने दिया है उसके बेस पे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो लोग निकाल सकते हैं कि आप कितना यहाँ पे सैलरी पहले ले रहे थे, रीजन क्या हो सकता है जॉब लीव करने के लिए, वो सारी चीज चेक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपका पर्पस यही है, आर यू फिजिकल फिट फॉर द जॉब। ठीक है, आप फिजिकल फिट हो, जो भी हमने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है, आर दे हैविंग अ फिजिकल फिटनेस। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन समटाइम डू नॉट कंडक्ट एनी फिजिकल एग्जामिनेशन बट बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर द मेडिसिन एग्जाम। ठीक है, इन सर्टन जॉब में ऐसा जरूरी नहीं हो कि मेडिकल एग्जाम की जरूरत होती है, बट सर्टन जॉब में मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी होती है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, आर्मी में जाओगे तो आपका फिजिकल फिटनेस कितना है वो हर एक चीज चेक होगा, फिजिकल फिटनेस। तो सम ऑर्गेनाइजेशन समटाइम नीड टू हैव अ चेकअप ऑफ द एप्लीकेशन टू फाइंड आउट कि वो फिजिकल प्रॉब्लम से तो डील नहीं कर रहा है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, वो इफेक्टिव कोई डिस्चार्ज उसका कोई भी ड्यूटी जो हो रहा है, ठीक है, उसमें उसको यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है। तो फिजिकल फिटनेस का, तो फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट आर बीन एग्जामाइंड इन दिस स्टेप, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। Next one is your final interview. Finally, a suitable candidate is selected on the basis of the performance in the above mentioned. जो भी आपका फाइनल इंटरव्यू में जो बंदा सिलेक्ट होगा वो पांचों स्टेप में वो पास हो गया होगा, वो अपने पांचों स्टेप में सिलेक्ट हो गया होगा, उसके बाद उसका फाइनल इंटरव्यू दिया, फाइनली इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ऑथोरिटी बॉडी है वो आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और जो भी ऑथोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है का, तो आपके जो मैनेजर है का, तो आपकी जो भी ऑथोरिटी है, दे विल कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू वेयर डिटेल knowledge related to that particular field will be examined by the final authority of the board, that is board of director, और आपके जो भी authority board है वो आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एंड देन देयर विल बी अ प्लेसमेंट। जैसे सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, कैंडिडेट विल बी प्लेस ऑन द जॉब। इनिशियली प्रोबेशन बेस में होगा, प्रोबेशन बेस कितना टाइम पीरियड के लिए होगा, इट कैन बी 3 months to 2 years। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली ऑब्जर्व किया जाएगा 2 साल तक, उसके बाद 2 साल के बाद यू विल बी परमानेंट फॉर योर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर फाइनल प्लेसमेंट। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्टिंग विद द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन टिल द प्लेसमेंट। एक सिंगल लाइन में मुझे एक्सप्लेन करना है तो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन, मेरे पास 100 एप्लीकेशन आई है, उसमें से 50 एप्लीकेशन ऐसी होगी जो मेरे जॉब के रिलेटेड नहीं होगी, तो उसको मैं रिजेक्ट करूंगी, और 50 जो मेरी जॉब के रिलेटेड है उसको मैं स्क्रीन आउट करूंगी फॉर माई इंफॉर्मेशन। सिलेक्शन टेस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, आपका यहाँ पर नॉलेज टेस्ट हुआ, आपका अचीवमेंट टेस्ट हुआ। तो उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं तो दे कैन हैव अ सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड, दैट इज अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट स्टेज इंटरव्यू ऑल्सो, जहाँ पे मोर डिटेल अबाउट द कैंडिडेट विल बी एबल टू नो बाय हैविंग अ इंटरव्यू सेक्शन विद फेस टू फेस। उसके बाद चेक इन ऑफ रेफरेंस, जो आपने अपने रिज्यूम में जो रेफरेंस दिया होगा उसको वहां पे वो फोन कॉल करके आपकी इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, आर यू फिजिकल फिट फॉर योर जॉब, वो चेक किया जाएगा बाय हैविंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा बाय द आपके अप्रूवल ऑथोरिटी बोर्ड होगी, उससे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, एंड देन देयर विल बी अ प्लेसमेंट इन योर रिस्पेक्टिव जॉब। दैट इज योर सिलेक्शन प्रोसीजर, you need to understand step by step. So just go through the video and understand the selection procedure briefly, and then we will have a detailed explanation on your online lecture. Thank you students for listening.